1000 2000 कितना है? हाँ 1,000 ही हुई है। बढ़िया है यार। मैकडोनल्ड में पिज्जा आ जाएगा। डोमिनोज में, सॉरी, डोमिनोज में आ हम्म। जाएगा। यस। तो तुम्हारा कितना किया भाई दोनों का? सागर और राहुल तुम दोनों को कितना चला गया टोटल में जाके? क्या सर? हम तो इतना पैसा दे दिया भाई बहनों को। मैंने तो सर अभी पैसा नहीं दिया है उसको, अभी लेके जाना 1-2 दिन में। वो बोली है मेरे को कुछ कुछ खरीदना है तो लेके चल, जितना भी होगा देना पड़ेगा। हम बोले ठीक मोटा ही कटेगा भाई, मोटा कटेगा। राजू, व्हाट अबाउट यू? डोंट यू सेलिब्रेट रक्षाबंधन? Yes, bro. Celebrated today only, right? टुडे यू हैव ओनली सेलिब्रेटेड? Hmm. तो हाफ हाफ ऑफ द सैलरी गॉन। No, no. देन इट इज फाइन। लेट माय मशीन ब्रॉट अप, देन आई विल स्टार्ट। और पवन, राखी आज है कल है? आज आज कितना खर्चा कर लिया? मतलब मैंने तो आज ही बनाई मतलब। तो कितना, मतलब ये बोल मैं आज कट गया कितना? ऐसा नहीं। बहनों को देने से कोई गरीब नहीं होता। सही बात है। लेट माय मशीन ब्रॉट अप, देन आई विल स्टार्ट। सो गाइस, चलो बातें बहुत होगी, लेट्स स्टार्ट। सो फार व्हाट वी हैव डन, आई मीन हमने इंस्टेंस बनाया, वीपीसी बनाया, we have created instance, we have created VPC, but now the thing is this: the user is complaining that his space is full. यूजर कहता है कि मेरा स्पेस फुल हो गया, आई नीड टू अटैच सम स्पेस। आप लोगों को स्पेस अटैच करना है। इन द केस ऑफ AWS वी हैव EBS, known as elastic of storage. It's general purpose SSD, means नॉर्मल लोकली आप इसको अटैच कर सकते हो। इट्स मीन्स अगर आपका इंस्टेंस, इफ योर इंस्टेंस इज इन द रीजन एंड अवेलेबिलिटी जोन, so your EBS volume and availability zone has to be matched. If your availability zone is in 1D, then your EBS volume should also have in 1D. अगर आपका EBS volume भी उसी अवेलेबिलिटी जोन में होना चाहिए जिस अवेलेबिलिटी जोन के अंदर आपका इंस्टेंस है। दिस इज द वन थिंग। सेकंड, hang on, राजू, 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 यू देयर? राजू, राजू, यू देयर? Yeah, hello. Let him know I'm that speaking on yes, mute. you are still facing on the issue while you are Okay. attaching the EBS, while you are attaching the certificate. Pod is not taking that. First, second, Prometheus is not pulling the data. We have to set up variables inside Prometheus.yaml on Prometheus pod. Got it? So yes, I'm still stuck. Let him know. Straightforward. Let's say yes, pod is not. I am while adding the set, pod is not accepting the configuration. Okay. Let me write. Just guys, just give me a second. Just let him know these two things. Okay, bro. They will Guys, set up a call for us. yeah, just go ahead. If he is on a call, then take me on the WhatsApp, but not set now. Just set it after the session. Okay. Let him know that I am having my dinner. I'll ping you later on. Okay. Okay.
So guys, I'm so sorry. What I was talking about, मैं क्या बोल रहा था कि ये जो आपके EBS वॉल्यूम्स होते हैं ये आपके अवेबिलिटी जोन स्पेसिफिक, यानी अगर आपका इंस्टेंस अवेबिलिटी जोन 1A में है तो ये EBS वॉल्यूम भी आपका 1A में ही होना चाहिए। यहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चन ये बनता है कि I cannot attach my EBS volume. Why? Because you have to check your availability zone. Is it in the same or is it in the different availability zone rather than your EC2? First. Second, the issue is the second question, it comes like that. How do you copy EBS data to another region? आप EBS data को दूसरे region में copy कैसे करोगे? So now here are the two statements. Attach EBS volumes and how to copy data from one region to another region. How to copy EBS data. EBS data को आप कैसे करोगे? How to copy EBS data from one region to another. These are the two interview questions came from this. So now to answer this, how to attach an EBS volume, we have to create an EBS volume to attach. To attach an EBS volume, हमें पहले EBS volume create करना होगा. Now first of all, check your instance. My instance is in 1D. Go back to volumes. Click on create volume. Here, go to volumes, create volume. जैसे आप create volume करते हो वो आपसे साइज पूछता है, give जो number of size जो आपको देना है, I said 10 GB. Availability zone, I said 1D. If you click here snapshot, you don't create volume from snapshot, but इसका मतलब होता है कि आपके पास ऑलरेडी स्नैपशॉट्स हैं, आप उसी में से वॉल्यूम बनाना चाहते हैं. I said no, I don't need. इनसे क्रिएट वॉल्यूम. जब आप क्रिएट वॉल्यूम कर लेते हो तो आपने देखा मेरे पास एक 10 GB का एक्स्ट्रा साइज और आ गया. अब मुझे 10 GB के साइज को अपने इंस्टेंस के साथ में अटैच करना है ताकि मैं इसको यूज कर सकूं, इसमें डेटा को डाल सकूं. और मेरा टारगेट क्या है तो पहले मेरे को डेटा ऐड कराना है, फिर वही डेटा मेरे को दूसरे रीजन में फैच कराना है. दिस इज माय वर्क टू डू फॉर टुडे. हाउ डू यू अचीव दैट? Once you refresh after creation, it said available. That means this is ready to attach with instance. क्लिक करिए, एक्शन पर जाइए, यहाँ पे लिखिए अटैच वॉल्यूम. यहाँ पे करने के बाद इंस्टेंस आईडी आएगी, उसको रनिंग इंस्टेंस पे क्लिक करिए. अब ये कहता है कि आपका जो ये वॉल्यूम है ये आपके सर्वर पे इस नाम से अवेलेबल है, से अटैच वॉल्यूम. इंस्टेंस में जाइए, इंस्टेंस को कनेक्ट करिए. आ गया. अब यहाँ पे आपने क्या करना है, रूट बनना है सबसे पहले. ये कमांड है, ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूँ. आपने कमांड चलानी है एफ हाइफन करी. यहाँ पे जब आप आओगे सबसे एंड वाला देखना, जो एंट्री होगी वो आपका पार्टीशन होगा जो आपने अटैच किया. कंफ्यूज मत होना, आपकी मशीन में किसी और नाम से भी आ सकता है, XVDF1, XVDG2, समथिंग समथिंग. देखिए आपने क्या करना है, इसको कॉपी करना है, बट ध्यान रखना जो स्टार्ट होगी ड्राइव वो डैश से स्टार्ट होगी. सर आपने एक सेकंड सर, आपने जो कमांड चलाया वो ड्राइव दिखा दिया ना, मेमोरीज कितने सारे हैं, है ना? नहीं सर, ये आपके सिस्टम में कितने पार्टीशन से ये दिखाता है. ओके 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 कितने हार्ड डिस्क है कितना नहीं है. ओके. अब देखिए यहाँ पे एक 20 GB जो हमने कल अटैच करी हुई, ये उसका पार्टीशन है. अब यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो नीचे कोई पार्टीशन नहीं बना, इसका मतलब ये मेरी ब्लैंक है ड्राइव. आप रखिए FD/dev. यहाँ पे आके एन करेंगे फॉर न्यू पार्टीशन. अब ये पूछता है प्राइमरी एक्सटेंडेड, तो आपने क्या करना है प्राइमरी, उसके लिए P दबाना है.
पार्टीशन डिफॉल्ट एंटर एंटर, ये आपका हो गया, आपका एक ही पार्टीशन बन गया। सिंगल पार्टीशन आपने 10 GB का एक ही ड्राइव लेटर बनाया। अब ये बना रहा है, राइट कर रहा है, 1 सेकंड का टाइम लगेगा, 2 मिनट का टाइम लगेगा, डिपेंड आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस पे। क्या आ गया? इट सेट क्रिएटेड अ न्यू पार्टीशन। इस स्क्रीन से बाहर निकलने के लिए W दबाएं। W आने के बाद यहाँ पे आप पार्ट प्रूफ दबाएं। पार्ट प्रूफ का मतलब होता है कि आप सिस्टम को बता रहे हो कि देयर इज अ न्यू पार्टीशन। दोबारा इसको करें F डिस्क। यहाँ पे आपने देखा कि एक पार्टीशन बन चुका है आपका, ये पार्टीशन में से एक ये पार्टीशन। अब ये पार्टीशन आप यूज करने के लिए पहले से फॉर्मेट करें। फॉर्मेट करने के लिए कमांड होती है mkfs.ext4 और ये आपका पार्टीशन है। पार्टीशन फॉर्मेट कर दिया, बट अभी तक आप इस पर काम नहीं कर पाए। आपको काम करने के लिए सबसे पहले आपको इसको एक डायरेक्टरी का नाम देना होगा, क्योंकि तो ये लाइनेक्स है, यहाँ पे हर चीज डायरेक्टरी है, तो आपको इसको लाइनेक्स को एक डायरेक्टरी का नाम देना पड़ेगा। एक डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए डायरेक्टरी क्रिएट करने की कमांड होती है mkdir। सपोज मैंने यहाँ पे एक कमांड लिख दी mkdir राखी, एक राखी नाम की डायरेक्टरी आ गई मेरे पास। मैं इसको इस पार्टीशन को इस पे लोड करूंगा ताकि मैं काम कर सकूं। उसके लिए मेरे पास कमांड है माउंट नेम, माउंट पार्टीशन नेम और डायरेक्टरी का नाम। अब आप इस डायरेक्टरी में जाइए और जो भी आपने काम करना आप कर सकते हैं। सर क्या ये जो करें? हम पार्टीशन कर रहे हैं ना, तो वो किस पे होगा पार्टीशन? रीजन पे रहता है, मीन्स वॉल्यूम पे रहेगा, मीन्स डिस्क पे रहता है, क्या ये है वो? पार्टीशन का मतलब है आपके वॉल्यूम जो आपने अटैच किया, उस पे पार्टीशन। पार्टीशन इस वॉल्यूम का है। ओके। अगर मैं चाहूँ तो इसके पार्टीशन का मतलब क्या होता है, आप सभी के पास लैपटॉप है इस टाइम, आप सभी के पास डेस्कटॉप है। आप लोग एक काम करिए, आप यहाँ पे जाके अपने माई पीसी को आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे ड्राइव्स दिखाई देंगी, सी ड्राइव, डी ड्राइव, बी ड्राइव। मेरे पास 4 है, आपके पास 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है। ये किस चीज का पार्टीशन है? ये आपकी हार्ड डिस्क का पार्टीशन है। आपने अपने हार्ड डिस्क को डिवाइड करके 4 टुकड़ों में बांट दिया। सेम काम मैंने करा है कि ये पार्टीशन यानी ये हार्ड डिस्क जो मैंने अटैच करी थी, ये एक हार्ड डिस्क है। ये हार्ड डिस्क जो मैंने अटैच करी थी उसका मैंने सिंगल एक ही पार्टीशन बनाया है, उसमें एक ही उसको मैंने एक ही पार्ट में डिवाइड कर दिया, बस एक सिंगल सर वहाँ पे पार्टीशन। df-h कीजिए सर एक बार, df-h कीजिए। ओके देखो ना 9.8 GB आ रहा है। हाँ करेक्ट। ये बाकी जो 0.2 GB है वो मेरा जब मैंने mkfs कमांड चलाई थी तो उसने यहाँ पे रो और सेक्टर्स के अंदर उसको लेबलिंग कर दिया, तो उसके लिए उसने 2 GB का इस्तेमाल किया। 0.2 GB का पार्टीशन ये रहा मेरा। सर अगर हम पार्टीशन दो नहीं तो 3 करते हैं, तो फिर वो कैसे डिवाइड होता है? उधर हमें मेंशन करना होता है कि इतना इतना जीबी इसको दो, नहीं तो इतना इतना। एब्सोल्युटली। जब आपने यहाँ पे ये बनाया था, यहाँ पे ये आपने बनाया था ना एफडिस्क कमांड आपने यूज करी, तो जब आप एफडिस्क इस्तेमाल करते हैं तो वही टाइम आप डिफाइन कर सकते हो कि आपको कितने पार्टीशन बनाने हैं, 1, 2 या 4। किधर सर? यहाँ पे ये एक्शन देख रहे कौन हो, से जब लाइन आप पे? हाँ हाँ जब आप P दबाओगे तो प्राइमरी पार्टीशन बन गया। स्टार्टिंग जो हो रही है वो 2048 से हो रही है। जैसे ही आप नेक्स्ट एंटर मारते हो तो वो आपसे स्पेस पूछता है। टोटल स्पेस आपका ये है। अगर आपको 2 या 3 पार्टीशन बनाने हैं तो इसी में से आप साइज ले लो, 5 GB, 4 GB, 2 GB, जितने का भी आप लेना चाहते हो। इस तरीके से आप मल्टीपल पार्टीशन बना सकते हैं। ऐसे कुछ फिक्स्ड है क्या? 4 ही पार्टीशन बन सकते हैं, नहीं तो 10 बन सकते हैं? मीन्स n number of partitions we can create. पार्टीशन 2 तरीके के होते हैं, प्राइमरी और एक्सटेंडेड। Okay.
एक हार्ड ड्राइव में आप सिर्फ 4 पार्टीशन बना सकते हो प्राइमरी, हम्म, और एक्सटेंडेड आप n नंबर ऑफ बना सकते हो जितनी आपकी हार्ड डिस्क की ओके कैपेसिटी ओके है। ओके। अब ये आ गया, मैंने डेटा यहाँ पे कर लिया, लेकिन ये तो ईबीएस वॉल्यूम है, मैं कॉपी कर ही नहीं सकता यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगा, स्नैपशॉट लूंगा। स्नैपशॉट का मतलब होता है मैं इसका बैकअप लूंगा। क्रिएट स्नैपशॉट, तो पूछता है मेरे से किस चीज का स्नैपशॉट लेना है, वॉल्यूम का, किसका, मैंने बोला वॉल्यूम। और वॉल्यूम आईडी आपको देनी पड़ेगी, मैं भूल गया वॉल्यूम आईडी कल की तरह से, सॉरी। मेरा 10 GB है, वॉल्यूम आईडी है मेरी 65E। क्रिएट स्नैपशॉट, सेलेक्ट अ वॉल्यूम, ये था मेरा स्नैपशॉट 65E। डिस्क्रिप्शन में आप दे दीजिए कुछ भी, टैग दे दो ताकि आपको आसानी रहे उसको आइडेंटिफाई करने में। नेम दे दिया मैंने, पेंडिंग है मेरा, पेंडिंग है, इसको बनने दीजिए। सर हम लिनक्स कैसे यूज करते हैं वैसे, अगर हम स्टार्टिंग में इंस्टेंस क्रिएट करते वक्त अगर हम विंडोज चूज करते हैं तो विंडोज का कंपनी में कैसा यूज होता है, लिनक्स पे ही कमांड देते हैं या विंडोज पे ही भी आप कर डिपेंड सकते हैं? करता है, सी देखिए कंपनी के अंदर ये हमेशा डिपेंड करता है कि आप किस प्रोजेक्ट में है, आप किन टूल्स को यूज कर रहे हैं। 80 इंडिया के अंदर 80% कंपनीज में मैंने लिनक्स देखी है। सिर्फ कुछ ही कंपनीज ऐसी है जहां मैंने विंडोज देखा है। बहुत सी जगहों पे विंडोज यूज होती है, बहुत सी जगहों पे लिनक्स यूज होती है। 90% आपको लिनक्स मिलेगी और 80% और 10% आपको विंडोज मिलेगी। मोस्टली विंडोज जो यूज होती है हमारी एडी यानी एक्टिव डायरेक्टरी और डेटाबेस के लिए इस्तेमाल। कॉपी टू अदर रीजन, यहाँ मेरा कंप्लीट हो गया, यानी स्नैपशॉट बन गया। एक्शन पे जाइए, यहाँ पे जाके इसको करिए कॉपी स्नैपशॉट, कॉपी कर दीजिए कहाँ पे, जिस भी लोकेशन पे आप लेना चाहते हैं। सपोज मेरे को मुंबई जाना है, मुंबई का है AP South 1। तो अब चलो मुंबई छोड़ दो, US West 1 में जाओ, यहाँ पे मैंने बोला कॉपी स्नैपशॉट, अब मैंने कॉपी कर दिया। अब मैं गया US West 1 में, कैलिफोर्निया। ये देखो 10 GB मैं कॉपी कर रहा हूँ वहां से, यहाँ पेंडिंग पड़ा हुआ है। इन द मीन टाइम मैं इंस्टांस बना लेता हूँ यहाँ पे, तो ये जिससे क्या होगा, मैं डेटा को एक्सेस कर, यहाँ पे आया, चूज करा उबंटू, कोई भी OS जो आप लेना चाहते हो, कॉन्फ़िगर करा, डिफॉल्ट पे रहने दिया। एक सेकंड यार, मैं ये देखना भूल गया मेरा EBS वॉल्यूम कौन सी किचन में है। जो वेस्ट 1 में था, अब इसका वॉल्यूम बना दो
10 GB का स्नैपशॉट था, यानी बैकअप को आप ओपन करिए और यहाँ पे जाके देखिए क्रिएट वॉल्यूम, क्लिक किया तो आपका जो है अवेलेबिलिटी जोन 1B है। आप चेंज करना चाहो कर सकते हो, बट मैं 1B में रहने दूंगा। मैं यहीं पे अपना इंस्टेंस बना, वॉल्यूम पे आया तो 1B में मेरा 10 GB का वॉल्यूम आ गया। और मेरे को इंस्टेंस भी 1B में बनाना है। सेलेक्ट करा, कॉन्फ़िगर इंस्टेंस करा, यहाँ पे मेरा अवेलेबिलिटी जोन है, अवेलेबिलिटी जोन 1B, ऐड स्टोरेज, टैक्स, सिक्योरिटी ग्रुप, लॉन्च, क्रिएट कर लेता हूँ। इन द मेन टाइम मेरी मशीन बनेगी, मेरा वॉल्यूम रेडी हो गया होगा। वॉल्यूम क्या है? यहाँ पे आके देखा मैंने, लिखा अवेलेबल, इंस्टेंस को दोबारा जाता है, वॉल्यूम्स पे गया, एक्शन पे गया, यहाँ पे जाके बोला अटैच हो इंस्टेंस, ये रहा मेरा 1B के अंदर अटैच करूंगा। अब जब मेरा मशीन चालू होगी, जब मेरा मशीन स्टार्ट होगी, इंस्टेंस मेरा रेडी होगा, तो ये ऑटोमेटिकली इसके साथ आएगा और मैंने जो डेटा बनाया था मेरा डेटा सेफ रहेगा। वेट कर लीजिए। कनेक्ट करिए, हो गया आपका सक्सेसफुल। व्यू ले लीजिए। ऑटोमेटिकली एक पार्टीशन बनना होगा, माउंट कराना है बस आपको। देखिए साइज भी सेम है, अगर आप जाइए इसको आप देखें, आपका डेटा सेफ है। सो दिस इज द वे टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। कोई क्वेश्चन? सर फिर से जरा रिपीट कीजिए ना। और ये जो हमने पार्टीशन जो है वो हमने कॉपी किया है ना? हमने स्नैपशॉट बनाया पहले पार्टीशन,
तो अगर अपने पास दो पार्टीशन होंगे तो दोनों का अलग अलग हमें करना पड़ेगा। दोनों का अलग अलग करना पड़ेगा। ओके, थोड़ा सा फ्लैशबैक दो सर इसका। मैं बता दूँ हाँ क्या करना है। सबसे पहले आपने एक वॉल्यूम बनाना है। वॉल्यूम बना के आपने उस वॉल्यूम का स्नैपशॉट लेना है। वॉल्यूम बना के उसका स्नैपशॉट लेना है। जब वो स्नैपशॉट बन जाएगा आपने स्नैपशॉट को सेलेक्ट करना है, एक्शन में जाना है, कॉपी करना है स्नैपशॉट। जब वो दूसरे रीजन में आ जाएगा तो वहां पे आपने फिर उसका वॉल्यूम बनाना है। यहाँ से जैसे ये स्नैपशॉट है, क्रिएट वॉल्यूम फ्रॉम स्नैपशॉट, और उस वॉल्यूम को किसी भी एक ड्राइव प्लेटर पे उठा के माउंट कर देना है। कहो तो मैं दोबारा पूरा प्रैक्टिकल करा देता हूँ, या समझ आ गया तो फिर आगे बढ़ते हैं। बताइए। प्रैक्टिकल दिखाएंगे, दैट विल बी ग्रेट। हाँ, दिखा देता हूँ। चार्ज एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है, चलेगा सर। चलेगा। चलो फिर ठीक है। एक काम कर लेते हैं, तुम्हारे चलेगा के चक्कर में सब्यसाची बैठा हुआ है, कह रहा है, भाई मेरे को क्यों मरवा रहे हो? तुम्हें देखना है देखो, मेरा क्यों करवा रहे हो? ठीक है, एक काम करते हैं, शुरू से करते हैं, नया इंस्टांस बनाते हैं। लॉन्च करते हैं। राजू, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम डूइंग, और इज इट गेटिंग बाउंस्ड? राजू, ओए राजू, राजू is gone. राजू, you there? मैंने एक नया इंस्टांस बना दिया। आई हैव क्रिएटेड अ न्यू इंस्टांस। संदीप, समझ आ रहा है? राजू उसको, तो राजू है नहीं तो फिर हिंदी में बात कर ली। जो मेरा एक इंस्टांस बन गया। अब मुझे क्या करना है, ये वॉल्यूम यानी साइज बढ़ाना है। एक 10 GB का एक पार्टीशन मेरे को ऐड करना है नए इंस्टांस। बट मैं फिर भूल गया मेरा इंस्टांस था किस रीजन में। मैं वॉल्यूम पे गया, मेरा विजिबिलिटी जोन, मैं बोला क्रिएट वॉल्यूम। अब आप देखोगे एक 10 GB का क्रिएटिंग है, एक वॉल्यूम क्रिएट कर रहा है। अवेलेबल हो गया। मैं अपना इंस्टांस देखता हूँ, मेरा इंस्टांस इनिशियलाइज हो रहा है। इसको बनने दीजिए इंस्टांस को। लेट दिस इंस्टांस गेट इनिशियलाइज। सब्यसाची, समझ आया कुछ या ऊपर से निकलता? सब्या, नहीं नहीं सर, समझ में आ गया। क्लियर है सर, क्लियर है। बस वो पार्टीशन वाला चीज है ना, उसको थोड़ा प्रैक्टिस करना है, तब जाके वो कमांड वगैरह होल्ड में आएगा। नहीं तो प्रोसेस समझ में आ गया सर। मतलब तुम एक्स्ट्रा पे नहीं करोगे इसने आगे गए।
अभी आ गया, कनेक्ट हो गया। इंस्टेंस की आईडी देखिए क्या है, FC। वॉल्यूम्स पे जाइए दोबारा। वॉल्यूम मेरा ये था लास्ट का अवेलेबल। क्लिक करके एक्शन पे जाइए, अटैच करिए। यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे मैंने देखा FC। यहाँ पे आ गया, कनेक्ट करा, कॉपी करा, यहाँ पे जाके मैंने अपना इसमें याद रखिएगा, मैंने इसमें ऑलरेडी अटैच कर रखा है वॉल्यूम। जाके मैंने बोला FDIS 5, मैं बोला HVDF करके न्यू पार्टीशन बनाया, प्राइमरी 1, पहला एंटर। अब मेरे को साइज देना है इसका, मेरे को 2 GB का बनाना है एक पार्टीशन, प्लस 2G। एक बन गया, मैंने N करा, फिर मेरे को प्राइमरी बनाना है, पार्टीशन नंबर डिफॉल्ट लेगा। यहाँ पे साइज आपका पहले पे एंटर, दूसरे पे आप इसको दे दो +7G। अब आपको 2 पार्टीशन बने। W करके बाहर आइए, हार्ट प्रोब -L दोबारा चलाएं, आपको यहाँ 2 पार्टीशन नजर आ गए। इन्हें फॉर्मेट करिए MKFS। वो डायरेक्टरी बनाइए MKDIA माउंट करा दीजिए यहाँ पे। तो 2 डायरेक्टरीज हो गई। मैं CD A करके इसमें गया, मैंने बोला टच, एक फाइल बना दी मैंने यहाँ पे, इसने यहाँ CD करके B में गया, एक फाइल मैंने यहाँ पे बना दी राजू। तो 2 डायरेक्टरीज में 2 फाइल है। अब मेरा मैनेजर कहता है डेटा आपको दूसरे रीजन में लेके जाना है। मुझे क्या करना पड़ेगा, रीजन में जाने के लिए इसका स्नैपशॉट लेना पड़ेगा सबसे पहले। और वॉल्यूम्स में गया, वॉल्यूम की आईडी मैंने देखी B9 है, 65B9। स्नैपशॉट में गया, यहाँ पे जाके बोला क्रिएट स्नैपशॉट, वॉल्यूम का बनाना है मुझे, वो 65B9 ये मेरा वॉल्यूम है। डिस्क्रिप्शन मैंने लिख दिया 2 पार्टीशन, याद रहेगा। मैं बोला क्रिएट स्नैपशॉट, आके बोला कॉपी स्नैपशॉट, कॉपी करा दिया मैंने इसको। कहाँ पे, EUS3 के अंदर कॉपी स्नैपशॉट। अब मैं EUS3 में जाऊंगा, मैं नया लिख दे रहा हूँ आप लोगों को, इतने मैं एक नई मशीन बना लेता हूँ।